Okay, dear students, so in this practical video we are gonna to understand file management in Windows 10. Okay, file management in Windows 10. So first thing which I would like to tell you is that what is Windows 10. So Windows 10 is an operating system which is developed by Microsoft Corporation. Alright, and operating system, you can see this is our operating system Windows 10. Alright, this is the desktop background. Okay, these are the icons, and this one is the taskbar. This is the taskbar. Okay, all icons are available here. So this is the taskbar. So a combination of this all is known as desktop. Okay, so now I will tell you some of the main topics in this chapter related with this chapter. So first of all, I will show you File Explorer. So you will have to just come over here, and here you will found this is the File Explorer folder. So just click on it. When you will click on it, you can see this File Explorer has opened. Okay, by clicking on this button, File Explorer has opened. Also there is a shortcut key to open this same. Just close it and press the window logo key and E button. Okay, so when you will press this shortcut key, window logo plus key E, so this particular File Explorer will open. So you will found here in File Explorer we can explore any file very frequently. So you can see here frequent folders. So here you will find a list of the folders, okay, which you visit or use very frequently. Okay, here you will found a list of the files or folders, okay, which you access very quickly. Over here you will find a list of the files which you have used recently. Okay, जो अभी आपने यूज़ करी हैं, अभी जस्ट लेटेस्ट आपने जो भी सबसे लास्ट जिस फाइल पे कवर किया है वो फाइल आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगी. ठीक है, वो मिल जाएगी सीक्वेंस में. Here you will find OneDrive. Okay, so this is just like Google Drive. Okay, गूगल ड्राइव जैसे हम सबके मोबाइल पे होती है, गूगल ड्राइव पे हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं. सेम वे हेयर इज़ वन ड्राइव. इफ़ यू वांट टू स्टोर योर डेटा फ्रॉम योर लोकल कंप्यूटर टू वन ड्राइव, you need an internet connection and one account. There should be one account on OneDrive. Okay, so you will log in and then you can save your data on it. In the previous versions of Windows, okay, the name of this folder was My Computer. Okay, name was My Computer, but here the name is This PC. In Windows 10 they have changed the name to This PC in place of My Computer. So when you will click on this icon, okay, so you will see all the devices and drives which are attached to it. Okay, it could be hard disk, for example local disk D, E, C, and your external disk could be attached, for example an USB drive if you have a CD-ROM or DVD-ROM. Okay, so all those will be available here. Okay, also you found the folders here, for example videos, picture, music, desktop you can move quickly from here, document, download. So you get all the details from your This PC icon. You just need to click here. Okay, if you want to extend this, so just click on this arrow icon and this will get open here. This will get extend. Okay, ये खुल जाएगा. If you will again click over here, this will get closed. You can also do double click over here. डबल क्लिक करोगे तब भी खुल जाएगा, डबल क्लिक दोबारा करोगे बंद हो जाएगा. Alright, so you can do that. If you want to see the content of in any of these, so you just need to select that and click on that. For example, I want to see the content in E drive, so just click over there and you will see all of the contents available here. Okay,
In the same way, if you want to move to C drive, you can click over here, select from here, and all the content of C drive will be visible here. In the same way, in D drive the contents are visible. Okay, so simply whatever, if you want to go to download section, you can download. If you want to go to documents, you can move to documents. So File Explorer is a very useful tool for us to explore the files very quickly. Okay, and I have told you the shortcut key is window key plus E. Okay, Explorer E, window plus E. So okay, so that is the thing which we can perform. Okay, Windows has many versions. The Windows 10 is in many versions. Okay, previously Windows established 95, 98, XP, 2000, Vista, so many versions were there. Then the latest one is Windows 10, और Windows 10 के अंदर भी कई सारे एडिशंस हैं. ठीक है, एडिशंस फॉर एग्जांपल Windows 10 होम एडिशन, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education. तो इन सब के अलग अलग यूज़ होते हैं. जैसे Windows 10 Education इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस. ठीक है, Windows 10 होम एडिशन इज़ फॉर द यूज़र्स जो अपने होम पे नॉर्मली होम के लिए चाहते हैं, घर के लिए चाहते हैं, तो उन्हें होम एडिशन मिलता है. उनमें क्या होता है, थोड़ी लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है, ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं होती है. सो इफ़ यू नीड मोर फंक्शनैलिटी, सो यू शुड गो फॉर Windows 10 Pro. ओके, प्रोफेशनल वर्जन. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस द कोड नेम ऑफ Windows 10 इज़ थ्रेशोल्ड. जो कोड नेम था Windows 10 का, दैट वाज थ्रेशोल्ड. ये आपको पता होना चाहिए, इसको ध्यान रखें. कोड नेम ऑफ Windows 10 इज़ थ्रेशोल्ड. नाउ we will look another point. Here you see these all are the icons. You know the folder, this is a folder, this is a file, this is a file. Okay, this is a folder. Okay, so now what is a folder, what is a file? I will tell it to you. File, suppose you want to work on paint. तो आपने क्या करा, सर्च पे गए एंड टाइप पेंट. पेंट टाइप करते ही यू गॉट पेंट अवेलेबल हेयर. जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड यू जस्ट स्टार्ट ड्राइंग. ओके, you can draw anything whatever you want. So suppose I just draw this triangle here. You just select any color and fill it with any shape. So a triangle is here now. Now you want to close this file, close this. Okay, so when you will close this, it will ask that would you like to save your changes. If you will save it, if you will click on save, it will ask कि where do you want to save this file and what name you would like to give it. So suppose I want to give it a name, my painting. Okay, my painting, and I want to save it as JPG and save it. So I have saved it as my painting. So you can see the path was desktop. So on desktop this painting file has been saved. Okay, this file has saved here. Now I can keep it here. Otherwise, so this is a file simply where my data, my information is stored in this file, the triangle which I have created. Now I can create another file, for example this one. Okay, file management in Windows 10. So I have created this also. This is a file in PowerPoint. This is a file in Paint, Microsoft Paint. So if I open file management PowerPoint, so you can see here, so this is the PowerPoint slides over here. In this file there are so many slides. So I close it and now you can see there are two files, painting file and the PPT file. I want to keep these files somewhere in a common place so that I can find them easily. So I need a folder where I can put all files. So I just click, right click. What you do need to do, just right click on the desktop, move to new folder and click folder here. न्यू ऑप्शन पे जाके आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे आ गया, इसका नाम दे दीजिए न्यू फोल्डर का. सपोज आई हैव गिवन द नेम class 4. Alright, I just give it name class 4, or you can give any name whatever you want. So now I can simply click and drag this file into this folder. So the file has moved inside this folder. Or I can select the file, right click and cut the file and double click on the class 4 folder
right click and paste. So by both way I can paste my files or move my files inside the folder. So now you can see here is one folder. I can drag this folder, move this folder anywhere, but I will keep it here. Okay, so now you see there is a folder which is containing 2 files. Okay, if I want to see the content inside the folder, double click on this folder and you will see inside class 4 there are 2 files. Okay, the type of the file is, one is PowerPoint file and another one is JPG file. All right, you can also have folders inside class 4 folder. Okay, you can have another folder inside a folder. So what I need to do for that, just right click, न्यू पे जाओ, फोल्डर पे जाओ, यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ पीपीटी का नाम दे दिया मैंने, ठीक है। और एक और फोल्डर बना दिया मैंने, न्यू फोल्डर, और इसको मैंने नाम दे दिया पेंट, ठीक। सो नाउ आई कैन मूव दिस पीपीटी फाइल इनटू दिस पीपीटी फोल्डर, और पेंटिंग फाइल को आई कैन मूव, क्लिक करो और ड्रैग करो और छोड़ दो पेंट के अंदर, ठीक। सो नाउ यू कैन सी क्लास 4 फोल्डर के अंदर देर आर 2 मोर फोल्डर्स, पेंट और पीपीटी। तो अगर मुझे पेंटिंग देखनी है तो मैं पेंटिंग फोल्डर के अंदर जाके पेंटिंग देख सकता हूँ। अगर मेरे को पीपीटी फाइल देखनी है तो आई कैन मूव टू पीपीटी फोल्डर एंड आई कैन सी द पीपीटी ओवर हियर। सो यू कैन सी हाउ मच आई कैन मैनेज आवर डेटा, ठीक है। तो अब क्लास 4 के अंदर वी हैव दिस मच ऑफ फोल्डर। सो मैनेजमेंट हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं अपनी फाइल्स का, ठीक है, फाइल्स का और फोल्डर्स का। बट इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि किसी भी फोल्डर के अंदर हर फाइल का नाम यूनिक होगा, यूनिक। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई और फाइल सेम नेम से नहीं बना सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं कोशिश करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या करा, पेंट खोला, पेंट खोल के ओपन करा यहाँ से पेंट को एंड जस्ट ड्रॉ एनीथिंग एंड देन क्लोज इट, सेव इट इनसाइड डेस्कटॉप में क्लास 4 के अंदर गया मैं एंड इनसाइड पेंट फोल्डर के अंदर गया, और पेंट फोल्डर के अंदर आई जस्ट गिव इट नेम सेम, जो नाम यहाँ पे पड़ा है इस फाइल का, जिस नाम से सेव है, अगर मैं वही नाम दूंगा, ठीक है, माई PAINTING, माई पेंटिंग, सो यू विल फाउंड कि ये सेव नहीं करेगा इसको, ठीक है। यू विल गेट ए मैसेज माई पेंटिंग .jpg ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहले से ही बनी हुई है, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, बदलना चाहते हो, ठीक है। ओवरराइट कर देगा, यानी कि ये वाली अगर मैं येस करता हूँ तो ये वाली फाइल सेव हो जाएगी और वो वाली जो पिछली ड्राइंग थी हमारी वो गायब हो जाएगी। बट मैं उसको गायब नहीं करना चाहता, आई वॉन्ट टू कीप बोथ ऑफ द फाइल्स, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा नो, और मैं यहाँ पे अपनी फाइल का नाम चेंज कर दूंगा माई पेंटिंग 1 करके, कुछ भी दे सकता हूँ, एनी नेम, एनी अदर नेम, बट नॉट दिस वन, ओके। तो इसको सेव करूँगा तो अब ये सेव हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं माई पेंटिंग भी है और माई पेंटिंग 1 भी है, ऑलराइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ है इसके अंदर कि हमने देख लिया हम फाइल्स कैसे क्रिएट कर रहे हैं, फोल्डर कैसे क्रिएट कर रहे हैं। व्हाट इफ़ आई वांट टू रीनेमिंग अ फाइल, मुझे रीनेम करना है, रीनेम मतलब गिविंग अनदर नेम, दूसरा नाम देना चाहता हूँ कोई। सपोज ये माई पेंटिंग 1 है, आई वांट टू चेंज इट, मैं इसको कुछ और नाम देना चाहता हूँ। सो जस्ट क्लिक ऑन द फाइल, राइट क्लिक हेयर एंड रीनेम, यू विल फाउंड एन ऑप्शन रीनेम, क्लिक ओवर इट, और यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे तो यू कैन रीनेम इट। सपोज मैंने दे दिया साइन, ओके, सपोज दिस इज़ अ साइन इमेज, मैंने इसको साइन दे दिया नाम, राइट। सो इस तरीके से आप इसे रीनेम कर सकते हो। इन द सेम वे इफ़ आई वांट टू रीनेम अ फोल्डर्स नेम, सपोज मैं क्लास 4 पे गया तो क्लास 4 के अंदर ये 2 फोल्डर थे, आई वांट टू रीनेम PPT, मुझे PPT को चेंज करना है, पावर पॉइंट देना है इसका नाम। सो जस्ट क्लिक दैट फोल्डर, सेलेक्ट दैट फोल्डर, राइट क्लिक, रीनेम, एंड देन यू कैन टाइप पावर पॉइंट, एंटर, ओके। सो नाउ द नेम हैज़ गॉट चेंजेस। सो ये समझ में आ गया आपको। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर मुझे मल्टीपल फाइल्स सेलेक्ट करनी होती हों तो कैसे करेंगे हम। जैसे कि सपोज़ यहाँ पे लेट मूव टू अ फोल्डर, सपोज लेट्स ओपन फाइल एक्सप्लोरर।
So I have opened this one. Now I want to open I want to select. ओके मुझे मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करनी है. अगर मैं अभी साइन वाली फाइल पे क्लिक करता हूँ और फिर फाइल मैनेजमेंट पे क्लिक करता हूँ तो साइन वाली अनसेलेक्ट हो गई, फाइल मैनेजमेंट गॉट सेलेक्टेड. नाउ इफ आई विल क्लिक हेयर ऑन माई पेंटिंग तो अब ये अनसेलेक्ट हो गई फाइल मैनेजमेंट एंड माई पेंटिंग गॉट सेलेक्टेड. बट आई वांट टू सेलेक्ट साइन भी मुझे सेलेक्ट करना है, फाइल मैनेजमेंट वाली फाइल भी सेलेक्ट करनी है एंड दिस वन आल्सो. ये सब मुझे सेलेक्ट करनी है. तो यू कैन डू वन थिंग. जब हमें सारी एक साथ सेलेक्ट करनी होती है, सपोज साइन से लेकर मुझे यहाँ तक या यहाँ तक सेलेक्ट करनी है, सो यू कैन डू व्हाट, पहली फाइल जो भी आपकी उस पर सेलेक्ट कर लो उसको, देन प्रेस द शिफ्ट की. शिफ्ट की को प्रेस करो और दबा कर रखो शिफ्ट की को, और जहाँ भी आप जहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है वहाँ पे जस्ट क्लिक उसे सेलेक्ट करो. तो यू विल फाउंड ऑल फाइल्स आर सेलेक्टेड. सारी की सारी फाइल्स सेलेक्ट हो गई, राइट. लेकिन अगर मेरे को सारी एक साथ सेलेक्ट नहीं करनी है, मुझे इनमें से कुछ जैसे ये वाली करनी है एंड देन दिस वन इज़ नॉट, नेक्स्ट वन आई नीड टू सेलेक्ट, मुझे नॉन एडजेसेंट फाइल सेलेक्ट करनी है, मतलब एक साथ नहीं करनी है, सारी अलग अलग करनी है. फॉर दैट यू नीड टू होल्ड द कंट्रोल की. कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे, ठीक है. जैसे साइन सेलेक्ट है, मैंने कंट्रोल की को प्रेस करा, माई पेंटिंग को सब क्लिक कर दिया, ग्रेड 5 को क्लिक कर दिया, ठीक है. वट एवर यू कैन सेलेक्ट, जो भी आपको अच्छी लग रही है फाइल, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट. आप उस फाइल पे क्लिक कर दो. जस्ट कीप द कंट्रोल की प्रेस्ड. उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. जब आपने सारी फाइल सेलेक्ट कर ली हैं, कंट्रोल की को आप छोड़ सकते हो. आपकी ये सारी फाइल्स क्या हो गई हैं, सेलेक्ट हो गई हैं. तो दिस इज़ अ वे हाउ डू वी सेलेक्ट नॉन एडजेसेंट फाइल. एडजेसेंट फाइल्स को अगर मुझे सेलेक्ट करना है, सिंपली यू नीड टू कीप द शिफ्ट की प्रेस. शिफ्ट की प्रेस करके जहाँ तक करना है वहाँ तक दबाकर यू कैन सेलेक्ट. और इफ़ आई वांट टू सेलेक्ट नॉन एडजेसेंट फाइल, जस्ट प्रेस कंट्रोल की, कीप इट प्रेस्ड एंड सेलेक्ट द फाइल्स विच यू वांट टू सेलेक्ट. नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस deleting a file or a folder. If I want to delete a file or a folder, okay, so suppose I am inside class 4 and inside paint, I want to delete a file. मुझे एक फाइल डिलीट करनी है. कैसे कर सकता हूँ? आप सिंपल उस फाइल पे जाओ, उसको सेलेक्ट करो और आपकी कीबोर्ड में एक की होती है डिलीट की, उस डिलीट की को दबा दो. जैसे ही आप उसे दबाओगे तो आपके पास मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फाइल टू रिसाइकिल बिन. जब भी हम कोई फाइल डिलीट करते हैं वो फाइल रिसाइकिल बिन में चली जाती है. मैंने येस पे क्लिक करा. रिसाइकिल बिन इज़ जस्ट लाइक ए गार्बेज फोल्डर, गार्बेज, ठीक है. तो जो भी हमारा गार्बेज होता है कंप्यूटर का वो सारा रिसाइकिल बिन में चला जाता है, जो भी हम डिलीट करते हैं. सो दिस फाइल हैज़ मूव टू द रिसाइकिल बिन. वो यहाँ से चली गई है तो हमने डिलीट कर दिया उसको, ओके. अनदर वे टू डिलीट अ फाइल इज़ जस्ट सेलेक्ट द फाइल, राइट क्लिक एंड डिलीट, और डिलीट कर दो, येस कर दो यहाँ से, और आपका ये फाइल डिलीट हो गई है, ठीक है. फोल्डर इज़ एम्प्टी है फ्रॉम हियर. इन द सेम वे यू कैन डिलीट द फोल्डर एज वेल. आप फोल्डर्स को भी डिलीट कर सकते हो. पेंट फोल्डर है, जस्ट सेलेक्टेड है ऑलरेडी, राइट क्लिक करो इस पर, डिलीट पे क्लिक करो और डिलीट कर दो तो डिलीट हो गया. इन द सेम वे पावर पॉइंट फोल्डर है, सेलेक्ट करो एंड जस्ट प्रेस द डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड और ये भी डिलीट हो गया. समझ में आ गया सबको? इस तरीके से हम इनको डिलीट कर सकते हैं, ठीक. So this was all about your file management, okay. So just do these practicals at your home if you have computer with you. Otherwise watch this video so that you can have a knowledge that how we perform these operations. All right, okay, bye.